Hello and welcome to the Employment Academy. So, today we are starting the current shooters for the month of April. So, today is class number 1. So, let's get started. The first question is the Reserve Bank of India has directed which of the following payment banks to stop the onboard of new customers? The correct answer is Paytm Payment Bank. If I'd like to say the Paytm headquarters is in Noida, okay, and the current chairman is Vijay Shekhar. Vijay Shekhar Sharma. Okay, chalo. Let's move on to the next question. Next question is which life insurance company has entered into bancassurance partnership with Bharat Cooperative Bank? So first of all, let's understand the term bancassurance. So what is this? It's an agreement between a bank and an insurance company allowing the insurance company to sell its product to bank's client database. Okay, the correct answer for this is Aditya Birla Sun Life Insurance Company. I hope this is clear with you. Okay, so the next question is the Indian Army version of medium range surface to air missile have been developed by DRDO in partnership with which country? The correct answer is Israel. So DRDO, the headquarters is in New Delhi. Everyone knows that DRDO is the what is our defense mechanism. Okay, and one more thing I would like to include over here is from Israel we have also bought Spike missile. Spike missile. So do remember this also. Okay, so this has happened near Odisha. This testing has happened near Odisha. ओके सो रशिया से भी हम लोगों ने ब्राह्मोस मिसाइल लिया है ब्राह्मोस मिसाइल सो ये आप लोगों को याद रखना है ब्राह्मोस मिसाइल हैज बीन आस्क्ड इन मेनी क्वेश्चंस मेनी एग्जाम्स ओके ब्राह्मोस ब्रह्मपुत्र एक हमारी जो आसाम की नदी है ब्रह्मपुत्र एंड एमओएस एक रशियन का नदी है मोजाबेल ने ऐसा कुछ नाम है उनका इनको एग्जैक्टली नहीं पता बस ब्राह्मोस आप लोग को याद रखना है इट बिलोंग्स टू रशिया ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेम द जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड उज्बेकिस्तान विच किक्ड ऑफ इन मार्च अरे ये 2022 होगा 2022 at Yan Giarik. Okay, so the correct answer is exercise Duskin. Okay, so this is basically a third edition. Okay, exercise Duskin was conducted at Uttarakhand. Okay, now let me give you some more examples of what is this exercise shared destiny. So this is basically a military exercise or an exercise that has held between China, Pakistan, Mongolia and Thailand. China, Pakistan, Mongolia and Thailand. So इनके बीच में ये शेयर्ड डेस्टिनी हुआ है exercise Khanjar is between India and Kyrgyzstan. किर्गिस्तान ओके एंड लास्ट वाला जो एक्सरसाइज बच गया है सॉरी एक्सरसाइज सी ब्रीज द सी ब्रीज हैज हैपेंड बिटवीन यूक्रेन एंड यूएस दिस इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज दैट हैज हैपेंड बिटवीन दिस कंट्रीज ओके सो आप लोगों को ये याद रखना इंडिया एंड उज्बेकिस्तान का कौन सा है एक्सरसाइज टस्किन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इंस्टीट्यूशन हैज सेट अप a new interdisciplinary water management policy and center aqua map to solve water problem in India? The correct answer is IIT Madras. Okay. Next question is naval ship recently presented the prestigious president color to whom? The correct answer is INS Valsura. ये कहाँ का है गुजरात ओके सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रेसिडेंट कलर मैंने आप लोग को पहले ही बताया है
आज एक बार और फिर रिवाइज करवा देता हूँ। जो भी मिलिट्रीज होते हैं, जो भी पुलिस वाले हो गया या सीआरपीएफ हो गए या बीएसएफ हो गए, आरपीएफ हो गए, उनके लेफ्ट हैंड साइड के शोल्डर में आपने एक बैच देखा होगा। एक ऐसा बैच रहता है दैट हैज डिफरेंट कलर्स एंड ऑल। सो दिस बैच इज डिनोटेड बाय द प्रेसिडेंट कलर। Okay, this is basically a memento that the country gives to the person or the unit for extraordinary performance during war or during peace. Okay, so just remember this. Next question is, which country test fired the intercontinental ballistic missile named Hwasong 17? The correct answer is North Korea. Okay, so now do you know what is ballistic missile? और बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल का डिफरेंस क्या है, मैं आप लोग को थोड़ा सा बता देता हूँ। चलो मान लो कि ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ए एंड बी, ठीक है। अभी ए ने फायर करा बी पे। ओके, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल फर्स्ट इसने फायर करा क्रूज मिसाइल। सो क्रूज मिसाइल में क्या होता है, द मिसाइल ट्रेवल्स इन ए वेरी लोअर रेंज। मतलब ये काफी उड़ता नहीं है, काफी हाइट पे नहीं जाता है, ये नीचे ही कम हाइट पे ही ये जाके अटैक करता है। दिस क्रूज मिसाइल कैन बी डायरेक्टेड एज पर द कमांड ऑफ द पर्सन दैट इज कंट्रोलिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर इसने शूट कर दिया क्रूज मिसाइल, तो बाद में कुछ हुआ कि कुछ ऑब्स्टेकल आ गए, पेड़ पौधे कुछ आ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल पेड़ पौधे तो नहीं आएंगे बट कुछ दूसरा आएगा, ऑब्स्टेकल आ गया, तो द कंट्रोलर कैन चेंज इट्स डायरेक्शन एज पर द नीड। ओके, बीच में ही इसको चेंज कर सकते हैं, रास्ते को चेंज कर सकते हैं। क्रूज मिसाइल में ये वाली सुविधा है। क्रूज मिसाइल में कौन सा इंजन यूज कर किया जाता है, वो इंजन किया जाता है जेट इंजन। जेट इंजन का मतलब क्या है, अभी जेट इंजन इज द वन जो ऑक्सीजन हवा से लेता है। इसके पास खुद का एक ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होता, इसके पास बस फ्यूल का सिलेंडर रहता है, ऑक्सीजन जो है ये बाहर से खींचता है। ओके, दिस इज जेट इंजन। नाउ सेकेंड वाले पे आते हैं। जो हमारा सेकेंड वाला है वो है क्या नाम है इसका, बैलिस्टिक मिसाइल। ओके, बैलिस्टिक मिसाइल में क्या होता है, सो बैलिस्टिक मिसाइल अगेन लेट्स कंसीडर लाइक ए एंड बी। ओके, ए ने बी पे अटैक करा विथ अ बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक, ओके, बैलिस्टिक मिसाइल से इसने अटैक करा। तो बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, ये बेसिकली काफी हाइट तक जाता है, ऑलमोस्ट ये जो स्ट्रेटोस्फीयर वगैरह है ये सब क्रॉस कर काफी हाइट पे चला जाता है। काफी हाइट पे जाने के बाद देन इट कम्स एंड अटैक्स द अदर पार्ट। ओके, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे रॉकेट इंजन यूज किया जाता है। ओके, रॉकेट इंजन यूज किया जाता है। रॉकेट इंजन क्या होता है, रॉकेट इंजन वो इंजन होता है जहां पे फ्यूल प्लस ऑक्सीजन दोनों सिलेंडर्स रहते हैं, फ्यूल एंड ऑक्सीजन दोनों सिलेंडर रहता है। तो पहले मैंने बोला था कि जेट इंजन जो होता है, जेट इंजन जो है दैट टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द एटमोस्फियर, इसके पास बस फ्यूल इंजन ही रहता है ना। बैलिस्टिक मिसाइल में क्या होता है कि यहाँ पे आपने एक बार शूट कर दिया तो यू कांट चेंज द डायरेक्शन, दैट इज while in the motion, okay, the controller cannot change the direction of the ballistic missile. So this is it. Okay, ये मोटा मोटी मैंने आप लोगों को बता दिया है, तो इस पे आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री हैज हेल्ड द लार्जेस्ट एवर मिलिट्री डील बालिकातन 2022 with which military of which country? The correct answer is Philippines. Okay, next question is, which naval command of Indian Navy has conducted offshore security exercise प्रस्थान ऑफ द मुंबई कोस्ट? ये आप लोग को काफी इजी रहेगा। मुंबई कोस्ट कहाँ आता है, हमारा वेस्टर्न में आता है, तो वेस्टर्न नेवल कमांड हो जाएगा। वेरी कॉमन आंसर, वेरी इजी आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंपनी हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद SpaceX टू रिज्यूम द लॉन्च ऑफ लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट? द करेक्ट आंसर इज OneWeb. सो SpaceX किसका हो जाता है, टेस्ला का है ये। सो व्हाट डज इट से, इट सेज कि आजकल जैसे हर किसी के घर पे ब्रॉडबैंड है, राइट, एक वायर रहता है जो हम अंडर द सी अंडर द अर्थ हम लेके आते हैं, एंड उसी वायर से हम दूसरे दूसरे लोगों को पहुंचाते हैं, ब्रॉडबैंड। बट ये जो कंपनी है स्पेस एक्स जो टेस्ला की है, तो वो क्या करेगा, वो बोल रहा है ये कि जो अर्थ का लो ऑर्बिट है वहां पे वो काफी सैटेलाइट्स भेजेगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अर्थ,
ठीक है। स्पेस एक्स ने क्या करा, लोअर ऑर्बिट पे अपने सैटेलाइट्स भेज दिए, अपने सैटेलाइट्स डाल दिए। तो क्या होगा कि रूरल एरिया जहाँ पे भी नेटवर्क का इशू है या कहीं पे भी, तो आप जाओगे, आपको एनी टाइम फुल हाई स्पीड नेटवर्क मिलेगा, फुल हाई स्पीड नेट मिलेगा। ओके, दिस इज अगेन ऑनगोइंग प्रोसेस। इस पे कोई ज़्यादा काम अभी तक डेवलप हुआ नहीं है, अगर हुआ भी होगा तो हमारे पास नहीं है, न्यूज़ के पास नहीं है। तो दिस इज द थिंग। तो स्पेस एक्स is planning to resume the launch of low earth orbit with OneWeb। अभी ये जो OneWeb है ना, दिस इज ओन बाय भारती एयरटेल, भारती एयरटेल। तो इनके साथ मिलके तो स्पेस एक्स इज डूइंग दिस सैटेलाइट वाला थिंग टू प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट टू एवरीवन। Next question is, which organization has organized the massive military drill Cold Response 2022 in Norway? The correct answer is NATO, North Atlantic Treaty Organization. In my last class only, I have discussed about this NATO organization, NATO. ओके, नेटो। तो आप लोगों को शायद मालूम ही होगा, नेटो के बारे में अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई वुड रियली लाइक यू टू वॉच द प्रीवियस क्लास वीडियो। ओके, तो इसका जो चीफ है, इनका जो चीफ है, ही इज जेंस स्टोलनबर्ग। ये आप लोग को याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम सेइंग यू रिपीटेडली, ये कहीं ना कोई एग्जाम में आप लोग को मिल ही जाएगा, अपकमिंग एग्जाम्स में, ठीक है। एंड इसका जो हेडक्वार्टर है नेटो का, वो कहाँ पे है, बेल्जियम में है, ठीक है। डू रिमेंबर ऑल दिस थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद व्हिच कंपनी टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड ड्रेडगर। सो व्हाट इज ड्रेडगर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्वेश्चन आता है कि ड्रेडगर क्या है, ठीक है। सो ड्रेडगर क्या है? ड्रेडगर बेसिकली ये है, दिस इज ड्रेडगर, बेसिकली अ जेसीबी फॉर वाटर बॉडीज, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम सेइंग यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है। तो यहाँ पे ये ड्रेडगर पहले हम किसी दूसरे कंट्री से मंगवाते थे, बट अभी हम इंडिजीनियसली, हम इंडिया अभी खुद डेवलप करेगा ड्रेडगर, ठीक है। इससे हमें काफ़ी आसानी होगी। जो पोल्यूशन है, जो पोल्यूटेंट्स हैं इन रिवर वाटर, इन ओशन वाटर या फिर लेक वाटर, उससे काफ़ी हमें क्लीन अप होगा। डैम्स बनाने में हमें काफ़ी आसानी होगी, नेविगेशन करने में काफ़ी आसानी होगी। सो दिस आर द थिंग्स। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द कार्गो वेसल विच हैज बिकम द लॉन्गेस्ट वेसल ever to sail on the river Brahmaputra? The correct answer is MV राम प्रसाद बिस्मिल। सो जो APSC एस्पिरेंट्स है या फिर जो आसाम गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं, सो दिस यू मार्केट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग को कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम में ये पक्का देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियाज फर्स्ट फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑटो कंपनी अंडर ए पायलट प्रोजेक्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल द करेक्ट आंसर इज टोयोटा। तो यहाँ पे जैसे यू ऑल नो कि अभी पेट्रोल डीजल्स के गाड़ी, पेट्रोल डीजल्स के प्राइजेस काफ़ी हाई है, एंड इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट ऑल्सो, करेक्ट। सो अभी जो नया जनरेशन आने वाला है, जो नया फ्यूचर आने वाला है, वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होगा। वहाँ पे क्या होगा कि वी विल बी यूजिंग हाइड्रोजन, और लाइक कोई भी सीएनजी वगैरह, गैस वगैरह, वी विल बी यूजिंग दैट। सो दिस इज बेसिकली एन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। ओके, सो दिस इज लॉन्च बाय टोयोटा। जो इसका नाम है वो है मिराई। सो दिस इज द व्हीकल। ओके, देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो पता नहीं, अभी भी ये पायलट प्रोजेक्ट पे है, पायलट प्रोजेक्ट मतलब टेस्टिंग पे है। ओके, तो दिस हैज़ नॉट येट लॉन्च इन द मार्केट, तो टेस्टिंग चल रही है ऑन रोड्स एंड ऑल। तो लेट्स सी व्हेन टेस्ला विल, व्हेन टोयोटा विल डेवलप इट एंड give it to the customers, right? So do remember this. Next question is, India's first virtual smart grid knowledge center has been developed by which company? The example is Power Grid. So आप लोग को एक ट्रिक बता देता हूँ, ये देखो, वर्चुअल फर्स्ट वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड, ये ग्रिड एंड ये ग्रिड, पावर ग्रिड। सो इसका आंसर ये हो जाता है, ऐसे आप लोग को याद रखना है। यही होता है यार, ट्रिक्स ट्रिक्स के साथ ही हमें याद रखना पड़ता है, कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं।
तो मैं आप लोग को थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि स्मार्ट ग्रिड क्या है। स्मार्ट ग्रिड क्या है? बेसिकली वी ऑल नो कि ये एक चलो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो गया, यहाँ पे हम लोग कोल डालते हैं या फिर पेट्रोलियम यूज़ करते हैं जहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो इस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के बाद पावर प्लांट्स में आते हैं एंड देन दे डिस्ट्रीब्यूट टू द डिफरेंट हाउस होल्ड्स। ओके, अब ये स्मार्ट ग्रिड से क्या हो जाता है, जैसे कि एक ग्रिड हो गया, दिस इज ए ग्रिड, ओके दिस इज ए ग्रिड, दिस इज ए ग्रिड। तो यहाँ पे क्या होगा कि मान लो चलो एक पेड़ है, एक पेड़ है, ओके एक पेड़ है। तो अभी इलेक्ट्रिसिटी फुल इस लाइन में जा रहा है, इस लाइन में जा रहा है, इस लाइन में भी जा रहा है, इस लाइन में भी आ रहा है, इस लाइन में भी आ रहा है, इस लाइन में भी आ रहा है एंड सो ऑन। अभी ये जो पेड़ है ये गिर गया फॉर एनी की रीजन, तो पावर ग्रिड जो स्मार्ट ग्रिड है ना, उससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो अपना रास्ता मोड़ के इस साइड से वो चला जाएगा, ताकि बाकी लोगों को करंट मिलता रहे, इलेक्ट्रिसिटी मिलता रहे। तो फिर उसके बाद जो स्मार्ट ग्रिड वाला ऑब्जेक्ट है, जो स्मार्ट ग्रिड वाला कंप्यूटर है, जो सेंटर है, वहाँ पे एक नोटिस आ जाएगा कि इस जगह पे कुछ डिफेक्ट हुआ है, प्लीज कम एंड चेक, एंड एज ए रिजल्ट डायरेक्टली वी कैन कम एंड इसको ठीक कर सकते हैं। काफी आसानी हो जाती है, राइट। सो दिस इज ए, अभी इसका जो ट्रेनिंग सेंटर है, ठीक है, दैट विल बी डेवलप्ड बाय पावर ग्रिड। सो डू रिमेंबर दिस। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन ड्रॉप्ड इन एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया फॉर 4 years? द करेक्ट आंसर इज हिमंत बिश्व शर्मा। तो ही इज द करेंट सीएम ऑफ आसाम। ठीक है, अब गवर्नर कौन है आसाम के, यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लेयर हैज ओन द फॉर्मूला 1 2022 Saudi Arabian gold prize? The correct answer is Max Verstappen. Okay, do remember this. Next question is PV Sindhu bet which player to lift women's single title at the 22 Swiss Open badminton tournament? The correct answer is Bhushan, ये बी है, द करेक्ट आंसर इज बी। ओके, मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, यू कैन जस्ट हैव ए लुक इनटू इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच टीम ओन द थर्ड एडिशन ऑफ SAFFU अंडर 18 वुमेन चैंपियनशिप? द करेक्ट आंसर इज इंडिया। दे हैव बेट हुम? नेपाल। ओके, दिस इज रिलेटेड टू फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल। सो डू रिमेंबर दिस माइट कम। अभी ये न्यूज पे आ गया है, तो कौन सा क्वेश्चन ये नहीं देगा कि कौन जीता, क्वेश्चन ये दे देगा कि ये जो है ना सैफ SAFF इज रिलेटेड टू विच गेम? द करेक्ट आंसर इज फुटबॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज wrist assured is autobiography of which former cricketer? The correct answer is GR Vishwanath. Okay, next question is which player has been felicitated with Sports Star of the Year Male 2022 at Sports Star Aces Award? The correct answer is नीरज चोपड़ा। ये मेल हो गया, तो फीमेल हो जाता है हमारा मीराबाई चानू। ओके, तो इनको मिला है द स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड। सो दिस इज अगेन ए इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर फीमेल। Okay, next question is name the Indian cricket player who has been felicitated with the Sports Icon Award at the Maldives Sports Award for 2022. The correct answer is Suresh Raina. Next question, which Indian company has become an official sponsor for the upcoming 2022 FIFA World Cup at Qatar? So ये वाला क्वेश्चन ना इस बार के APSC एग्जाम में आया था, जो 2022 में हुआ है, 21 में हुआ है, सॉरी। फीफा का जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप होगा कहाँ पे होगा? दिस इज कतर। अब इसका ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन है? ऑफिशियल इसका जो स्पॉन्सर हो जाता है आपका कतर एनर्जी, crypto.com and Byju's. So this is an important one, you can have a look. Who has become the first para athlete to receive Padma Bhushan award? So you all know, right? Padma Shri, Padma Shri, Padma Bhushan, Padma Vibhushan, then Bharat Ratna। ठीक है, ये सीक्वेंस होता है। पद्मश्री के ऊपर आता है पद्म भूषण, देन पद्म विभूषण, देन भारत रत्न। भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फॉर इंडिया। ओके, तो पद्म भूषण अवार्ड किनको मिला है? द करेक्ट आंसर इज देवेंद्र झांझिया जी।
ओके, सो व्हाट ही प्लेज जैवलिन। ओके, जैवलिन ये सर खेलते हैं हमारे। ओके, तो दीपा मलिक शी प्लेज शॉर्ट पुट। ओके, ऑल्सो दीपा मलिक इज द फर्स्ट वुमेन टू विन पैरा ओलंपिक मेडल। ओके, एंड जो हमारे अवनी मैम हैं, अवनी लेकर मैम, तो इनको मिला है पद्मश्री, पद्मश्री। ठीक है, तो शी प्लेज, तो शी इज ए शूटर और जो पैरा शूटर यू कैन से। ये जो है मरियप्पन थंगवेलु, तो ये जो है ही इज एन हाई जंपर और एन एथलीट यू कैन से। ओके, नेक्स्ट जो है ये पूजा जैतन, तो शी प्लेज आर्चरी। ओके, सो जो ओलंपिक्स के पैरा ओलंपिक्स के जो भी रिलेशन क्वेश्चंस है ना, तो आप लोग कोई भी एग्जाम देने से पहले ओलंपिक्स एंड पैरा ओलंपिक्स के बारे में थोड़ा सा आप लोग देख के जाना। क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया है एंड आई एम प्रीटी श्योर एसएससी सीएचएसएल में भी पूछा जाएगा। आप लोग ओलंपिक्स के बारे में अच्छे से तैयारी कर लेना। ओके, नेक्स्ट, इन विच सिटी इंडिया विल होस्ट द FIDE चेस ओलंपिक 2022? द करेक्ट आंसर इज चेन्नई। ओके, चलो, दिस इज द 44th एडिशन। Okay, next question is which player has been awarded as the ICC Men's Player of the Month February 2022? The correct answer is श्रेयस अय्यर। ठीक है, मार्च का एंड अप्रैल का कौन है? मार्च का एंड अप्रैल का है आपका बाबर अजान, तो ही प्लेस फॉर पाकिस्तान। ओके, मार्च का एंड अप्रैल का जो ICC मेंस प्लेयर ऑफ द अवार्ड है ना, ये इनको गया हुआ है। ठीक है, फरवरी का इनका हो गया। ओके, याद रहेगा ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमॉन्ग द फॉलोइंग हु ओन 2 सिल्वर मेडल एंड अ ब्रोंज मेडल एट स्पेन पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022? द करेक्ट आंसर इज प्रमोद भगत। ठीक है, सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। Next question is from the following has inducted into the World Golf Hall of Fame? The correct answer is Tiger Woods। ठीक है, Tiger Woods, but he plays golf, everyone knows that। okay, चलो ये याद रखना। Next question is ISSF World Cup 2022 was held in Cairo, Egypt। This is correct। India topped the medal tally with 4 gold, 2 silver and 1 bronze in 2022 ISSF World Cup of the above World Cup, correct? So the correct answer is both are correct। okay, so ISSF का अगर मैं फुल फॉर्म बता दूं आपका इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु हैज बीन डिक्लेयर्ड द 23rd एंड द लेटेस्ट वुमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? द करेक्ट आंसर इज प्रियंका नौटाकी। ओके, so she is just 19 years old and she has become the latest 23rd latest women grandmaster of India। so this is again an important question। चलो, आज का क्लास हम यही खत्म करते हैं। I will see you in the next class। till then keep studying। bye।